So, dear students, good evening. Aswit Good evening, everybody. This is Ashton Das from English.in and Dipti. Dipti. This is Dipti from Mastery.in of class 7. So, what are we talking about? Is what Rational number. in mathematics? So, rational numbers, simply as we were discussing in class 4, 5, 6, 7. So, what was rational number? Now, the rational number is nothing but the fraction. Fraction. So, what is fraction? Now, any number in the form p by P by q Q form. is a fraction, Fraction. and fraction is a rational number. Rational. Correct. So now here in this fraction we must take care that this is an integer, this must be an integer, and since no number can be divided by 0, q must not be equal to 0. Man, it must not be 0. Yes, ma'am. Not equal to. What is that? Not equals To it must not be must 0. not be 0. Correct. It must not be Zero. 0. Clear? Yes. So now the point is that here in class 9, it's class 7 and a class 8 you get this. So up to class 7 you say this particular style of number as fraction. And class 8 onwards you talk of rational numbers. So again the fraction itself is the rational number. Yes. So in that case a whole number 5 also can be written in this p by q form, Yes, sir. where the 5 is the numerator and 1 is the Denominator. denominator. So Yes. we can call this as a rational Rational number number. or not. Can Yes, we we call can. this as a rational number or not? Yes, Yes, we sir. can. And 3 by 2, is it a rational number or not? Yes. Yes. 2 by 3, is it a rational number or not? Yes. Yes. 2 by 0, No, it's No, not. no, it's not an rational. it is not a number at all. Yes. In mathematics, nothing can be divided Divided by by zero. 0. And if you write 0 as the denominator to divide something, so absolutely it is a no sense work in No mathematics. Yes. No sense. I didn't say the other word because it seems to be something different. Now let's talk of in class 9 what you get is that again you get for furthermore definitions. What? Now let's say I started dividing 2 by 3. Okay, so I'm showing the division here. 2 divided by 3. Correct? So what we will get a decimal point because Yes. the dividend is lesser than the divisor. Yes. Yes. So we will get a 0 for that Zero for decimal that. number over here. Yes. Yes. 3, 6 are 18. The result is 2. Remainder. Yes. Remainder. Again we will Again take a 2, 0 and take a 6. 3, 6 are 18 again. Remainder 0. Sorry. We add a remainder is 2. We add 0. Zero. Again Sir. 3, 6 are 18. Yes. So, Correct? Yes. So in this case, this way it will keep on going. yes. Yes. Another 6 you will get. Yes. Yes. Okay? A 20 and a 18, another division, another 6 you will get. Yes. So it will keep on going. Keep on going. Repeat. So it is a non-terminating, non-terminate. Terminate मतलब दिखते terminate मतलब आश्रित terminate मतलब मतलब जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए. जो एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेट. टर्मिनेट्स Terminates. एंड्स. टर्मिनेट्स मतलब Ends. एंड्स. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू होता है. जो खत्म नहीं होने वाला, नहीं होने वाला. कभी खत्म. बस. तो अगर खत्म नहीं होने वाला तो यहाँ पे लेकिन सुविधा क्या है, एक और चीज है कि भाई ये खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है. Yes. 6 6 6 6 6. सो हम एक 6 बार के हिसाब से इसको लिख सकते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 by 3? ना इट इज 0.6 बार. बार. Yes. इस बार का मतलब होता है रिपीटिंग. करेक्ट? बस. इट्स मतलब रिपीटिंग. ओके, और अदरवाइज नोन एज रिकॉरिंग. Record. रिकॉर RECUR. reoccur. 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 So a recurring, Reoccur. we can say it's a recurring one. So similarly take another example of division. Okay, let's say I am taking 7 by 8.
है ना, और 7 by let's say 4. Four. So 4 ones are 4 Four. and we got the remainder 3. 3. Now this 3 is the dividend, 4 is the divisor, Divisor. q is the quotient. Now this is the remainder, not the dividend. Yes. This is the dividend. Dividend. Now the remainder is there which is lesser than 4 but it is not equal to 0. So Yes. division to continue or not to continue. Sir, Continue. Yes, अगर कंटिन्यू होगा तो होल नंबर रिजल्ट आएगा या नॉन होल नंबर रिजल्ट आएगा. Sir, continue. रिजल्ट जो आएगा वो Yes. होल नंबर आएगा क्या? Sir, no. If we No, continue the division sir. right now is the result a whole number? No, sir. No, sir. Natural. अभी जो क्वोशेंट है वो होल नंबर है? No, Yes. sir. हाँ है. हम क्योंकि नेचुरल नंबर जो है उसके बाद पढ़े हैं होल नंबर, Yes. Yes. तो हम नेचुरल नंबर को भूल गए. कभी भी हम आप बोलते नहीं है नेचुरल नंबर इन हायर क्लासेस. वी से इधर होल नंबर और वी से अश्वित क्लास 9 एक कोई नंबर को हम बोलेंगे इट इज ए होल नंबर और फ्रैक्शन और Fractions. Fractions. डेसिमल. Or decimal. ये सिंपल चीजें हैं. एक स्टूडेंट को खाली फोकस्ड सुनने से भी क्लास में हो जाएगा. नाउ यू आर इन क्लास 9 एंड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है तो अभी हो जाना चाहिए. सो बी अटेंटिव इन द स्कूल क्लासेस ऑल्सो वेरेवर. सो आज से बाद मैं दोबारा जब भी पूछूंगा आपको आ जाना चाहिए. एनी नंबर इन मैथमेटिक्स, ओके, है ना, arithmetic number. I am not talking of algebraic number. There could be an algebraic number. So if it is algebraic number, then we call it as term. We don't call it as number. Correct? Yes. So 2x is not a number. 2x is a Term. term. 2 is the number. Term. So it could be 2.3x or not. Something. Some algebraic term could be 2.3x or not. Yes. Yes. Could it be 2 by 3x or not? Yes. Sir. So any algebraic term could be this, or could be this, or could be this with a whole number, or a decimal number, or a fraction as the coefficient. What is that? Coefficient. Coefficient. And this is the variable. Variable. So algebraic expression में कोई नंबर को हम नंबर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? Term. टर्म बोलते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में उसको हम बोलेंगे नंबर. नाउ द नंबर कैन बी ऑफ either whole number or Fraction. or Decimal. नाउ यहाँ पे द क्वोशेंट होल नंबर है या फ्रैक्शन है या डेसिमल है? Decimal. 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 दीप्ति अभी Decimal. क्वोशेंट क्या है? Sir, decimal. 1 is a decimal number. Whole. Sir, Whole. So again students be careful. जब कोई आंसर पूछा जाता है आपको आता नहीं है या आता है आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं देते हो, ये दोनों चीज ही बैड फॉर योर स्कोर. खाली पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ के लर्न करना है, करेक्टली रिमेम्बर करके पर्टिकुलरली डिलीवर करना है. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज. नाउ 1 अभी तक जो क्वेश्चन हमें मिला है वो है होल नंबर. ये ना फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है ना डेसिमल के फॉर्मेट में है. सो नाउ अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमें आगे जैसे इस चीज को अभी रिजल्ट को 4/7 को हम लिख सकते हैं अभी 1 होल 3/4 इस डायरेक्शन में. 1 होल 3/4 जो कि आगे चल के हमें क्या दे देगा ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ से, लेंगे इस तरफ से. ओके, जब लेंगे होल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. करेक्ट? Yes. होल नंबर न्यूमरेटर. Denominator. तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसको फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे वी गो दिस वे. Yes. हियर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, हियर देयर इज एन एडिशन. Addition. सो होल नंबर इनटू, ओके, that is whole number into the denominator plus the numerator by denominator होता है हमारा. Yes. तो होल नंबर भी कितना है 1, 1. डिनोमिनेटर कितना है 4. और न्यूमरेटर कितना है 3. होल डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 4. डिनोमिनेटर. So 1 into 4 is 4 plus 3 is 7 Seven. by 4. So आपका ओरिजिनल नंबर वापस आ गया. Yes. तो जो हमारा ये बाय मिस्टेक मैंने 4/7 लिखा है, ये क्या था 7/4 था. ओरिजिनल नंबर था 7/4. करेक्ट. तो 7/4 को 1 होल 3/4 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं
जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, Yes. या अगर कंटिन्यू करेंगे तो डेसिमल फॉर्मेट Decimal आएगा। format। कैसे? नहीं, यहाँ पे Point. देन 3 के बाद Zero। 0 30, करेक्ट। तो यहाँ पे दोबारा हम कर लेते हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो 4 ones are 4, we got the remainder 3, then we give a point, we get 30, 4 sevens are 28, we get a 2, we again give a 0, 4 5s are 20. So now this is a terminating or non-terminating number, decimal number. Not terminated. Asrit, this is terminated, this is ended. अब 20 आया, 4 5 जा 20 by 20 that is equal to 0, और आगे डिवीजन करने के लिए कुछ है नहीं, so this is a terminating number. So this is a terminating decimal number. Now एक अलग सा कोई एग्जांपल लेते हैं, 7 by 8 लेते हैं। so अगर 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8. हाँ 8 1 जा कहाँ आएगा? 8. guys कितना मैथ्स करते हो, क्या करते हो? So all dear students please take care. So 0 we will put, so 8 70, 8 8 ja 64, that is equal to 6 60, again 8 7 ja 56, 4 40, 8 5 ja 40. 40. So again it is a Terminating. Terminating. Yes. terminating decimal number. Okay. Yes. Yes. अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हमें मिलता है, कोई एग्जांपल हम लेंगे, तो दैट कुड बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ना हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर, जब तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शंस आर दैट। Yes. फ्रैक्शन को अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा डेसिमल। Decimal. अब डेसिमल में हमने बात की कि दो तरह का है, इधर दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स Yes. और Non-terminating नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, करेक्ट। Yes. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अगेन दो तरह का हो सकता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, बाय रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जहां टर्मिनेट हो गया, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ओके 7/4 2 या 3 डिजिट्स के बाद डिवीजन खत्म खत्म हो गया। रिपीट नहीं करना, नॉन टर्मिनेट नहीं है, आगे नहीं। जैसे 7/8 वो भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। सो ये टर्मिनेटिंग हो गया। सो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर। ओके, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, इधर रिकरिंग Recurring. और नॉन रिकरिंग। Non-recurring. अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यू, रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या है, सॉरी सिंबल क्या है, क्यू, Q. नॉट आर, वी विल बी राइटिंग क्यू। इंग्लिश में अगर आर लिख रहे थे तो मैथमेटिकल सिंबल विल बी Q. क्यू, तो बेटर टू गिव द मैथमेटिकल। Yes. So Q is the symbol for the rational number set. तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो नंबर्स पे डेसिमल नंबर्स वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, Yes. जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो बन जाएगा Irrational. इरेशनल। इरेशनल को हम लिखेंगे क्यू प्राइम। क्यू प्राइम, वी विल रीड इट एज Q क्यू प्राइम, नॉट क्यू डैश। Yes. सो रैशनल और यहाँ पे और इरेशनल। Irrational. सो फाइनली अगर चार्ट यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि हम इसी कॉपी में सारा रख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जाके इसको घर में अभी के अभी करेंगे, एंड अगर कोई डाउट रहेगा तो वीडियो देखेंगे, तो दैट्स व्हाई वी गो फॉर द वीडियो। सो अभी बात हो रहा है फाइनली, who are the rational numbers? Now all the natural numbers, whole numbers, integers, they are rational numbers. है ना? Natural numbers मतलब all positive numbers. Positive numbers. Whole number मतलब zero and all All positive numbers, correct? And Z मतलब negative and positive. all negative numbers, zero and positive numbers, Yes. correct? ये सब हैं rational numbers. Yes. Plus जो fractions हैं Fractions. वो हैं rational numbers. Fractions. जो डेसिमल नंबर्स हैं वो हैं रैशनल Rational नंबर्स। numbers. लेकिन जो डेसिमल नंबर है सारा बोल देंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोले। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं
वी आर रिपोर्टिंग होते हैं वही डेसिमल नंबर्स खाली रैशनल नंबर है. देन हु आर नॉट द रैशनल नंबर्स? ना डेसिमल नंबर्स Yes. जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही पर नॉन Non रिकरिंग भी है, मतलब रेकर नहीं नहीं कर रीऑकर नहीं कर रहा है, वो हो जाएंगे इरेशनल. Yes. सो आपकी कॉपी में किताब में क्लास 9 में खाली इतना है, बहुत सारा फ्रैक्शंस दिया गया है. आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करके उसका Yes. डेसिमल नंबर फॉर्मेट निकालोगे एंड वो डेसिमल नंबर फॉर्मेट चेक करोगे वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और Non terminated. एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये रिपीटिंग है या नॉन Non-repeating. रिपीटिंग. बेस्ड ऑन दैट ये रैशनल नंबर है, ये Rational रैशनल number नंबर है, ये रैशनल Yes, नंबर. no, no. और रैशनल नंबर का सिंबल क्या है मैथमेटिक्स का? Q. Q is a set of what? Rational numbers. Rational. N is what? Natural numbers. Set of natural numbers. W for? Set of whole numbers. And Z for? Set of integers. And the natural numbers are which numbers? All the positive Positive numbers. numbers. And whole numbers are which numbers? Zero and Zero all and the all positive positive numbers. numbers. And integers are which numbers? Negatives and Negatives, all negatives zero and and positive numbers. positive. And rational numbers क्या है ना, इनके साथ साथ सारे fractions. Fractions. So क्या बोलेंगे? All Z and the fractions. All Z Yes, and Zs the and the fractions. अगर फ्रैक्शन में आपको डाउट हो रहा है, दो तरह का, तो ये जो फ्रैक्शंस होंगे जिसका डेसिमल नंबर फॉर्मेट टर्मिनेटिंग होना चाहिए Yes. या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिकरिंग होना Recurring चाहिए, ones. तभी जाके होगा. Yes. सो मैथ्स करते वक्त कॉपी को ऐसे हो जाना चाहिए क्या दीप्ति? Yes. Yes. हो जाना चाहिए ऐसे, मतलब कहाँ पे क्या लिखे सब ब्ला ब्ला ब्ला, कोई सिक्वेंशियली नोट नहीं बनाए, सुंदर से नहीं लिखे. तो मैथ्स ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है. क्योंकि हम समझ रहे थे, Yes. लिंकिंग कर रहे थे, Thinking of it. चार्ट कर रहे थे. Yes. तो कॉपी अगर ऐसे खत्म हो रहा है तो आप मैथ्स अपने बहुत अच्छी तरह से किए हो. अगर मैथ्स अगर सुंदर से एकदम लाइन बाय लाइन लिख के कर रहे हो, मतलब वो मैथ्स नहीं है, लिटरेचर है. Yes. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. सो मैथ्स करते हुए कॉपी प्रैक्टिस के समय पे, हाँ एग्जाम जब दोगे तो एग्जैक्टली क्या करोगे, कॉपी को इधर से फोल्ड करोगे, यहाँ पे रफ वर्क दिखाओगे और यहाँ पे सुंदर सुंदर लिखोगे, यहाँ पे रीजन आउट लिखोगे, फाइनली हेंस लिख के आंसर लिखोगे. Yes. 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 Wishing you all the best. This is Jeet from Magic.in This is Ashit Das from Maths.in class 9. and This is Dipti from Maths.in of class 7. thank you all.